Hey friends, what's up? Welcome to my YouTube channel Make the world of mechanical engineering contents. Today we are going to learn new topics of mechanical engineering materials. Let's get started. So we will start our fifth chapter, that is non-metallic and advanced material. In the previous two lectures, we had an overview about the non-metallic and advanced material. Today, actually, we are going to start the chapter. From last two lectures, we are just taking the overview of this chapter. So this is the fifth chapter of your syllabus, that is non-metallic and advanced materials. Actually, this chapter consists two different parts. First part is about non-metallic materials, and second part is about the advanced materials. So in the first half portion of non-metallic materials, we are going to focus on the polymers or plastics. Okay, and the second half portion, we are going to focus on the nitinol or some kind of advanced materials, specifically shape memory alloys. We are going to focus in the second half portion. So overall weightage of this chapter is of 12 marks, and the number of hours required to complete this chapter is 8. Okay, in the 8 hour we have to finish this chapter. So if we talk about the syllabus or content in this chapter, we are going to study about the polymeric materials, polymers, types and characteristics of the polymers, and then properties and applications of the thermoplastics and thermosetting plastics and rubbers or elastomers. Then difference between the thermoplastics and thermosetting plastics. Then after that, characteristics and applications of ABS or different types of plastics. Okay, acrylics, nylons, vinyls, epoxides, melamines and bakelites. Then after that, rubbers, different types of rubbers, their properties and their applications. Then ceramics, their properties, their applications. Then composite materials, their properties, their applications. Then advanced materials. So the mixture of non-metallic materials is called as a composite material. So I have given two different examples. One is RCC block and another is plywood. Both of these examples belongs to the composite materials. Then advanced engineering materials, their properties, their applications, or and specifically if we talk about the nanomaterials, we are going to study in this chapter as a part of advanced engineering materials. Okay, so all these things we are going to study in this chapter. So we'll start with the introduction. So our title is non-metallic and advanced materials. So in the first half session we are going to focus on the non-metallic materials. So इससे पहले वाले जो दो चैप्टर्स, तीन चैप्टर्स हमने पढ़े थे, जिसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट जो चैप्टर था, इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर वी हैड स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स. In that classification, metals are further divided into two different types, ferrous and non-ferrous. So in the second and third chapter, we had discussed about the ferrous metals. That is specifically, if I can say that, in the second chapter we had discussed about the steels and their alloys, and in the third chapter we had discussed about the cast iron, whereas in the fourth chapter we had discussed about the non-ferrous metals. And right now in the fifth chapter we are discussing about the non-metallic materials. So likewise we are following the classification of the materials. We are trying to study the different types of materials which are useful in the engineering applications. Okay, so if we talk about the introductory part or the introduction of the non-metallic materials, so those materials which finds their applications in the engineering field and comes under the non-metallic materials such as ceramics, glasses,
or polymers or some adhesives, rubbers, cork, asbestos. So all these different types comes under the non-metallic materials. तो मेटालिक और नॉन मेटालिक के अंदर अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटालिक किसे कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे मेटालिक या मेटल की डेफिनेशन की बात करेंगे, द मटेरियल विच shares their electrons easily to make metallic bonds are called as metals. ऐसा मटेरियल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है दूसरे के साथ ताकि मेटालिक बॉन्ड्स तैयार कर सके, इस तरीके के मेटल्स को या इन टाइप्स के मेटल्स को इन टाइप के मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं मेटल्स। ऐसे मटेरियल्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरे मटेरियल्स के साथ ताकि बॉन्ड्स तैयार किए जा सके। कौन से बॉन्ड्स स्पेशली कौन से बॉन्ड्स? मेटालिक बॉन्ड्स। तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग कहेंगे मेटल्स। नॉन मेटल्स किसे कहेंगे? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करते हैं दूसरे के साथ, उन मटेरियल्स को हम लोग कहेंगे नॉन मेटालिक मटेरियल्स। ठीक है, अब नॉन मेटालिक मटेरियल के टाइप्स कौन से हैं? प्लास्टिक्स, रबर्स, अधेसिव्स, सिरेमिक्स, एस्बेस्टोस, कॉर्क एक्सेट्रा। और भी बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ पे कुछ एक नाम दिए हुए हैं बस। अब अधेसिव्स किसे कहते हैं? बाकी सारे टर्म्स तो आप लोग अवेयर हैं उससे। अधेसिव्स किसे कहेंगे? अधेसिव्स माने के जो एक प्रॉपर्टी, अधेसिवनेस इज अ प्रॉपर्टी। जैसा आपने पढ़ा होगा कोहेसिवनेस एंड अधेसिवनेस। जो अधेसिवनेस किसे कहेंगे? स्टिकिंग की प्रॉपर्टी, स्टिक होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं हम लोग अधेसिवनेस। फॉर एग्जांपल जो टेप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ग्लूज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? अधेसिवनेस देखते हैं ना, स्टिकनेस, कितना जल्दी वो स्टिक होता है या कितना ज्यादा समय के लिए वो स्टिक रहता है। तो इसे कहेंगे हम लोग अधेसिवनेस। तो अधेसिव्स बनाने के लिए भी जो है नॉन मेटालिक मटेरियल का इस्तेमाल किया था। फॉर एग्जांपल फेविक्विक, फेविकॉल, वो भी क्या है? अधेसिव्स ही है। इसके अलावा पेडिलाइट की आपने देखा होगा, बहुत सारे पेडिलाइट की भी जो है ट्यूब्स वगैरह आते हैं, जो दो अलग अलग ट्यूब्स रहते हैं, हमको दोनों को एक साथ मिक्स करके फिर लगाना होता है, अप्लाई करना होता है, तो वो भी अधेसिव्स के अंडर में आता है। उसी के साथ साथ इंसुलेटिंग मटेरियल, एस्बेस्टोस और कॉर्क, दिस आर द इंसुलेटिंग मटेरियल। यहाँ पे शॉक प्रूफ आपको बनाना है, शॉक रेजिस्टेंट बनाना है, वहाँ पे जो है हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी कौन से? एस्बेस्टोस और कॉर्क। इसके अलावा भी दूसरे भी है, बट मेजरली यहाँ पे जो दो नाम को रिप्रेजेंट किया गया है वो एस्बेस्टोस और कॉर्क। तो ये भी जो है आपके नॉन मेटालिक मटेरियल के कैटेगरी में आते हैं। These materials are comparatively cheaper and already replaced a lot of metals in our day-to-day life. They are corrosion resistant. They possess low weight and versatility in shape and sizes. So in this chapter we are going to discuss about all these materials in detail. इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पॉलीमर्स से या पॉलीमरिक मटेरियल्स से। तो सबसे पहले इसके नाम के ऊपर ही आते हैं, पॉलीमर। ये जो नाम बना है पॉलीमर, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है पॉली और दूसरा पार्ट है मर। पॉली का मायने होता है, इंग्लिश के अंदर अगर हम मीनिंग देखेंगे पॉली का, तो उसका मतलब होता है मेनी, और मर का मीनिंग होता है यूनिट। तो बहुत सारे यूनिट्स को, मेनी यूनिट्स को अगर हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो पॉलीमर बनता है। अब ये एक प्लूरल वर्ड है पॉलीमर। इसका सिंगुलर वर्ड अगर हम देखेंगे तो वो आता है मोनोमर। अगेन मोनोमर के अंदर जो है दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स यूनिट। तो बहुत सारे सिंगल यूनिट्स को इकट्ठा करके ज्वाइन करके हम क्या कर सकते हैं? पॉलीमर्स तैयार कर सकते हैं।
और बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस होता है जिससे पॉलीमर बनता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। अब शुरुआत में जब पॉलीमर बना था, इन द वेरी फर्स्ट डेवलपमेंट और इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करते हैं पॉलीमर की, तो जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था एज एन रॉ मटेरियल, अगेन वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे जो वेजिटेबल से और एनिमल से आया करते थे। तो अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते तो अगेन जो डिफिकल्टी हमको मेटल के साथ आई थी, वही सेम डिफिकल्टी हमको नॉन मेटेलिक मटेरियल के साथ भी आ सकती है। If we restrict ourselves to the organic substances or organic materials, तो शुरुआती दिनों में जो पॉलीमर बनाए जाते थे वो ऑर्गेनिक मटेरियल को एज एन रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। बट नाउअडेज we are not dependent on the organic raw material. So the polymers are organic material having carbon in the common element in their makeup. Polymers are composed of a large number of repeating units called monomers. A polymer is therefore made of thousands of monomers joined together to form a large molecule of celluloid dimension called macromolecule. तो अभी मैक्रोमोलिक्यूल किसे कह रहे हैं? मोनोमर्स को एक साथ ज्वाइन करने के बाद जो सेलुलॉइड डायमेंशन हमको मिल रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स वाला, नंबर ऑफ मोनोमर्स को ज्वाइन करने के बाद जो चेन बनती है, जो लिंक बनती है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ ब्रांचेस देखे थे उसमें देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल किसे कह रहे हैं? जो चेन बन रही है, जो नंबर ऑफ ब्रांचेस निकल रहे हैं, जिसे जो टर्म दिया हुआ है वो है सेलुलॉइड डायमेंशन। इस तरीके का जो हमने देखा था, ये क्या है आपके सेलुलॉइड डायमेंशंस। The process of linking the monomers together to form a polymer is called polymerization. If the joining of mers occurs essentially along one direction, we obtain long chain polymer. If joining occurs in other directions also, we get three-dimensional networks of bonds. Again, यही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके की आप चेन बना रहे हो। सिंगल डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शनल है, या फिर मल्टी डायरेक्शनल है। जैसे यहाँ पे ब्रांचेस बन रहे हैं, मल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है। देन पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज simply different forms, that is presence of two or more genetic or phenotypic variants in a mixture. पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। मॉर्फिज्म मतलब क्या है? यहाँ पे फॉर्म्स, जेनेटिक फॉर्म्स, और फेनोटाइपिक वेरिएंट्स और फेनोटाइपिक फॉर्म्स। अलग अलग टाइप्स के जो है मटेरियल्स को अगर आप इकट्ठा कर रहे हो, उनका मिक्सचर तैयार कर रहे हो, उसको कहेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। Organic materials are those materials which are derived from carbon and consist of carbon. These materials are chemically combined with hydrogen, oxygen, or other non-metallic substances, invariably having a complex structure. Example: wood, animal fibers, natural rubber, coal, etc. Many of our useful plastics, rubbers, and fiber materials are synthetic polymers. So this is all about the introduction of polymer. Now we are going to study about the different types of polymeric materials or polymers or plastics. So as we had discussed in the last lecture, polymers are divided into two different categories or two different types.
that is thermoplastics and thermosetting plastics. Okay, there are only two types of plastics. You should memorize it, or you should remember this point, that plastics are of only two types, thermoplastics and thermosetting plastics. इसके बाद जो अलग अलग टाइप्स आएंगे वो इसके सब टाइप्स हैं, इसके सब कैटेगरीज हैं, इसी से डिराइव हुए हैं। ठीक है, ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो सिर्फ दो ही हमको टाइप्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पॉलीमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की या फिर पॉलीमर्स के प्रॉपर्टीज की। तो डेंसिटी कम होती है इसलिए लाइट वेट होते हैं, कोर्जन इसमें नहीं होगा, फ्रिक्शन सरफेस जो है एकदम फिनिश रहने की वजह से, सरफेस एकदम स्मूथ रहने की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कम रहता है इसका। मोल्डेबिलिटी, किसी भी शेप में आप इसको डिफॉर्म कर सकते हैं, और इसको एक्यूरेट बनाना आसान होता है, एक्यूरेसी के साथ बनाना आसान रहेगा। इसको आप जिस चाहे उस कलर में बना सकते हो, अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हो। सरफेस एकदम स्मूथ मिलेगा हमको, कोई एक्स्ट्रा जो है इसके ऊपर ऑपरेशंस सरफेस को स्मूथ बनाने की या सरफेस फिनिश इंक्रीज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशंस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरीके से मेटल्स के ऊपर करने की ज़रूरत होती है, उस तरीके से पॉलीमर्स के ऊपर सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, सरफेस को शाइनी बनाने के लिए, सरफेस फिनिश इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कोई दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। देन इकोनॉमिकल होता है, ये सस्ता होता है, चीपर होता है, क्योंकि टोटली हम क्या कर रहे हैं, इसको लैबोरेटरीज के अंदर तैयार कर रहे हैं। इसलिए ये इकोनॉमिकल रहेगा। डिमांड बढ़ेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाएंगे, डिमांड कम होगा तो कम क्वांटिटी में बढ़ाएंगे। सो जिस तरीके से जो दिक्कत मेटल्स के साथ होती है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ दिक्कत होती है, उस टाइप की दिक्कत पॉलीमर्स के साथ नहीं होती है। दैट इज द ओनली रीजन इट इज इकोनॉमिकल। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें हमको कम मिलेगी और ज़्यादा टेम्परेचर को ये रेजिस्ट नहीं कर पाता। ये दो ड्रॉबैक्स इसके अंदर होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम रहेगी और ज़्यादा हाई टेम्परेचर को वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। ये जो प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं ओवरऑल पॉलीमर्स के बारे में देखे हैं या प्लास्टिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पहले टाइप की पॉलीमर्स की, फर्स्ट टाइप की, दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स, जो हमने भी यहाँ पे देखा था, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इसमें से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। Thermoplastics materials are those which soften on the application of heat with or without pressure, but they require cooling to set them to shape. They can be heated and cooled any number of times, but they should not be heated above their decomposition temperature. These materials are normally fabricated with simultaneous applications of heat and pressure. So in short, आपको सिंपल जो है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको आसानी से हम लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं। इस टाइप के मटेरियल को कहेंगे हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स। और इनको कोई भी शेप देना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। The only problem with thermoplastic is that it should not resist or sustain at the higher temperature or elevated temperature. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है थर्मोप्लास्टिक के साथ। अगर इस प्रॉब्लम को छोड़ देंगे या इस डिसएडवांटेज को छोड़ देंगे हम लोग, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज, आसानी से किसी भी शेप के अंदर इसको डिफॉर्म किया जा सकता है। कोई भी इंट्रिकेट शेप चाहे आप किसी भी शेप का बनाना हो वो हो जाएगा इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू। और नंबर ऑफ टाइम जो है उसको रिसाइकल हम लोग कर सकते हैं। हाँ, इतना होगा कि जितने बार आप उसको रिसाइकलिंग करोगे, जितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है आप उसको रिसाइकल करोगे, उतना ही उसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड होती चलेगी। उसकी क्वालिटी में जो है
कमी आती जाएगी, बट आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से नेचर को जो नुकसान पहुंचता है वो कम पहुंचेगा, वेस्ट कम निकलेगा इन शॉर्ट। Then if we talk about the properties of thermoplastics, then these are main long chain straight or slightly branched molecules, and the chains are held close to each other by secondary weak forces. These are highly plastic and are easy for molding or shaping. They have low melting temperature and are not so strong as the thermosetting plastics. Thermoplastics are relatively soft and ductile. Irreversible degradation results when the temperature of a molten thermoplastic polymer is raised to the point at which molecular vibrations become violent enough to break the primary covalent bonds. Since they can be repeatedly used, they have a resale value. तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसको मैन्युफैक्चर करना आसान है, थर्मोप्लास्टिक्स को। इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी बहुत कम होता है और ये थोड़े से सॉफ्ट और डक्टाइल होते हैं एज कंपेयर्ड विद द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो थर्मोप्लास्टिक्स सॉफ्ट और डक्टाइल रहते हैं। अब आपको डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूं मैं थर्मोप्लास्टिक्स का। सबसे पहले तो वाटर बॉटल देखा है ना आप लोगों ने, जो वाटर बॉटल आपके पास जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर आता है, जो आप बाहर से परचेस करते हो ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, और यस सर। तो वो जो बॉटल बनी हुई है वो आपकी थर्मोप्लास्टिक से बनी। तो अगर आप उसकी स्ट्रेंथ देखोगे तो स्ट्रेंथ वहां पे कम रहती है, सॉफ्ट रहेगा वो बॉटल। अगर आप क्रश करना चाहते हो तो क्रश हो जाती है आसानी से। ये एग्जांपल हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक्स। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं डे टू डे लाइफ का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में दिक्कत क्या होती है कि वो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, बट वो हार्ड होता है एज कंपेयर टू थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर मच हार्डर और ब्रिटल। तो अगर वहां पे इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ऊपर, तो उसके अंदर क्रैक आने के या फेलियर होने के चांसेस होते हैं। देन थर्मोप्लास्टिक्स को चूंकि हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं तो इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। स्क्रैप के अंदर जो है वो चला जाता है, या भंगार वाला जो होता है वो ले लेता है उसको। जिन जिन चीजों का जो है रिसाइकलिंग होती है उनका जो है रीसेलिंग अच्छा मिल जाता है, रीसेल वैल्यू अच्छा मिल जाता है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि जब भी आप इसको रिसाइकल करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है, जो मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा ना इंक्रीज कर दिया जाए कि वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को रीच कर जाए, जिसकी वजह से जो प्राइमरी कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं वो टूट जाए। ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज नहीं करना होता। देन इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल होता है थर्मोप्लास्टिक्स। जो पीवीसी पाइप्स आते हैं जो सीवेज लाइन के लिए हर एक घर में लगे हुए हैं, हर एक के घर पे लगा हुआ है पीवीसी पाइप। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये उसका केमिकल नेम। और आमतौर पे जो मार्केट में जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो है पीवीसी, उसका शॉर्ट फॉर्म है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक्स का वो है पॉलीस्टीरीन। अब पीवीसी और पॉलीस्टीरीन कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? प्लास्टिक के जो वॉल्स आजकल जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे जो एल्युमिनियम फ्रेम के अंदर जो डोर्स वगैरह लगते हैं, जो बाथरूम और टॉयलेट में आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं, या फिर पार्टीशन अगर हमको करना है, वहाँ पे पॉलीमर्स के जो है आजकल वॉल नजर आ रहे हैं आप, तो वो पॉलीमर वॉल्स बनाने के लिए पीवीसी या फिर पॉलीस्टीरीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो है वॉल के ऊपर डेकोरेटिव एक लेयर लगाने के लिए, अट्रैक्टिव एक शाइनी लेयर लगाने के लिए, या फिर जो है एस्थेटिक्स को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए वॉल के ऊपर भी एक स्टिकर आ रहे हैं पॉलीमर्स के, वो बनाने के लिए भी पीवीसी और पॉलीस्टीरीन का इस्तेमाल किया जाता है।
इसी के साथ साथ पॉलीस्टीरीन फ्लोरोसेंट लाइट्स के रिफ्लेक्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे टू व्हीलर या फोर व्हीलर की जो हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा एक रिफ्लेक्टिव एक लेयर होती है जो मिरर जैसी नजर आती है आपको, वो बनाने के लिए भी पॉलीस्टीरीन का इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट टाइप जो है थर्मोप्लास्टिक्स का वो है पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। ये लेंसेज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो स्पेक्स हम लोग पहनते हैं ना, उसके लेंसेज वगैरह बनाने के लिए पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट का इस्तेमाल होता है। देन कम टू द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स किसे कहेंगे हम लोग? जिसको फर्स्ट टाइम जब हम हीट करते हैं तो उसकी जो हार्डनेस है थोड़ी सी कम होती है, और जब उसको कूल डाउन करते हैं हम तो वो परमानेंटली किसी एक शेप के अंदर ही डिफॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद कोई जो है उसको सॉफ्टनिंग करने की या रिसाइकलिंग करने का कोई ऑप्शन वहां पे नहीं बचता। मतलब सिंगल टाइम यूज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम, सिर्फ सिंगल टाइम यूज के लिए। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक। मगर इस ड्रॉबैक के साथ इसकी एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज इस तरीके का है कि ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, या फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को अगर हम कंपेयर करते हैं थर्मोप्लास्टिक के साथ, तो थर्मोप्लास्टिक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न है कि जो हैंडल्स वगैरह बनते हैं किचन के अंदर, यूटेंसिल्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल फ्राइंग पैन और प्रेशर कुकर, उनके हैंडल्स बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। बट ये रिसाइकल नहीं किए जा सकते हैं, ये इसके साथ प्रॉब्लम है। बट नाउअडेज research is going on the thermosetting plastics, that how we can reuse it। तो इसका एक सोल्यूशन भी निकला है। सोल्यूशन इस तरीके का है कि जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं, जो रेलवे ट्रैक के नीचे अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो हॉरिजॉन्टल डाले जाते हैं, तो सबसे पहले अगर देखा होगा आपने ब्रिटिश ईरा के टाइम पर, तो वो वुडन स्लीपर्स का इस्तेमाल होता था, लकड़ी के स्लीपर्स। अब बहुत सारी जगहों पे आज भी देखने को मिलेंगे आप। देन उसके बाद कंक्रीट स्लीपर्स का इस्तेमाल हुआ। देन उसी के साथ साथ मेटल के स्लीपर्स का भी इस्तेमाल हुआ बहुत सारी जगह। बट नाउअडेज जो स्लीपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्रश किए हुए पार्टिकल्स से बना हुआ स्लीपर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका भी इमेज बता देता हूँ मैं आपको। ओके, तो ये जो ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं ना, इसे कहा जाता है रेलवे स्लीपर्स, जो रेलवे ट्रैक के नीचे लगाए जाते हैं। सो पहले अगर हम देखेंगे तो क्या है, वुड के आते थे, देन उसके बाद मेटल के आने लगे, देन उसके बाद कंक्रीट के आने लगे, देन नाउअडेज अभी जो है ये पॉलीमर के इस तरीके से आ रहे हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को रिसाइकल करके कोशिश की जा रही है कि इस तरीके का जो है रेलवे स्लीपर बनाया जा सके, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ज्यादा होती है। तो इस तरीके का रिसाइकल किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग आसानी से रिसाइकल किया हुआ। उतना ज़्यादा सरफेस फिनिश नहीं रहती, उतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं रहती है इसमें। जिस तरीके से थर्मो प्लास्टिक्स के अंदर आपको मिलती है शाइनिंग, उस तरीके की शाइनिंग तो नहीं होती है इसमें, बट स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है इसकी। इसका एडवांटेज यही है कि स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये रेलवे स्लीपर्स क्यों लगाए जाते हैं? रेलवे स्लीपर्स लगाए जाते हैं रेलवे ट्रैक को स्टेबिलिटी देने के लिए। ओके, सो ये रेलवे स्लीपर्स का क्या फंक्शन है कि जो रेलवे ट्रैक है उसको स्टेबिलिटी देनी है, उसको एक जगह पे पकड़े रखना है। अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर मिसप्लेस हो जाएगा रेलवे ट्रैक, तो जो डीरेल हो जाएगी आपकी ट्रेन, एक्सीडेंट हो सकता है वहाँ। सो इफ यू वांट टू कीप द रेलवे बोगीज ऑन द ट्रैक, in that case we have to give proper grip to the railway track। अब वो प्रॉपर ग्रिप देने के लिए क्या करते हैं, नीचे सबसे पहले तो अब एग्रीगेट नजर आ रहा है आपको, स्टोन्स है ना, उसको एग्रीगेट बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। वो एग्रीगेट के ऊपर रेलवे स्लीपर्स लगाए जाएंगे, देन उसके ऊपर रेलवे ट्रैक लगा जाएगा ताकि स्टेबिलिटी अच्छी मिले उसको। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो वो अभी फ्यूचर में ध्यान दे देना। एक रेलवे ट्रैक को ऑब्जर्व करो, जिस वक्त में रेल या ट्रेन उसके ऊपर से पास होती है, स्पेशली इंजन,
उस टाइम पे आप नोटिस करोगे तो जो रेलवे ट्रैक है ना नीचे दब जाता है थोड़ा सा, लोड की वजह से उसके ऊपर पड़ने वाले। और जैसे यस सर। हाँ यस, तो जैसे ही ट्रेन उसके ऊपर से पास हो जाती है तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। यही काम के लिए रेलवे स्लीपर्स वहां पे लगाए गए हैं, इसी काम के लिए लगाए गए हैं, ठीक है, ताकि ट्रैक्स को अलाइन रखे एक दूसरे के साथ में, और अलाइंड रहेंगे तभी वहां पे ट्रेन के डीरेल होने के चांसेस कम रहेंगे। तो एप्लीकेशन में एक्चुअली आपको बता रहा था यहाँ पे कि रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है, जो यूज्ड हो चुका है, जो ऑलरेडी एक अटेम्प्ट, एक साइकिल, एक लाइफ उसका जो है कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद जो हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आता है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में पहले तो क्रश किया जाता है, और क्रश करने के बाद उसको हीट करके एक स्लीपर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है, इस तरीके वाले, ये रेलवे स्लीपर है, इसको कहते हैं रेलवे स्लीपर। इस शेप के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले अमेरिका ने इसके ऊपर रिसर्च किया। क्यों रिसर्च किया, क्यों जरूरत महसूस हुई उनको इस टाइप के रेलवे स्लीपर्स की? क्योंकि उनके पास ये जो रेलवे स्लीपर्स हैं क्यों बनाए उन्होंने, मतलब उनके जहन में क्यों आया, उनके माइंड में ये आइडिया क्यों आया कि हमको जो रेलवे स्लीपर्स बनाने हैं वो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल या रीयूज करते हुए बनाने हैं। बिकॉज उनके पास जो स्क्रैप निकला था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का, उसके माउंटेन खड़े हो गए थे, ठीक है। प्लास्टिक गार्बेज जिसे हम लोग कहते हैं, जो अनयूज्ड है, जो अनरिसाइकल्ड है, अनरिसाइकलेबल जिसको समझा जाता था पहले, तो उसके क्या हो गए, माउंटेन्स खड़े हो गए। तो उसको फिर रिसाइकल करने के लिए उन्होंने एक अल्टरनेट ऑप्शन सोचा है जहां पे स्ट्रेंथ इज अ मेजर फैक्टर। एस्थेटिक्स वगैरह का वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस वहां पे क्या चाहिए थी, हमको स्ट्रेंथ चाहिए थी, ठीक है। तो रेलवे स्लीपर एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि वहां पे पहले हम वुड का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से फॉरेस्ट को कट करने की ज़रूरत पड़ती थी, उसके बाद मेटल्स के बनाने लगे, अगेन उसकी वजह से भी जो है नेचुरल रिसोर्स है वो, और नेचुरल रिसोर्स होने की वजह से भी जो है उसमें डिपेंडेंसी जो है नेचर के ऊपर थी, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता, बहुत ज़्यादा। तो पॉलीमर्स ही एक ऐसा ऑप्शन है जो प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, इजीली भी है, और उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं आराम से हम लोग। तो इस वजह से जो है रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कोशिश करता हूं बताने की कि किस तरीके से माउंटेन्स खड़े हो गए थे अमेरिका के अंदर 90s के अंदर या 1900s के अंदर, पिछला वाला डिकेड, बिल्कुल लास्ट डिकेड के अंदर, प्लास्टिक गार्बेज के। सो दिस इज अ इमेज ऑफ डंपिंग ग्राउंड, ठीक है। so, इस डंपिंग ग्राउंड के अंदर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का भंडार लगा हुआ है। लुक एट दिस इमेज। ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी है। अगर ये कोई ऑर्गेनिक वेस्ट होता तो वो डिकम्पोज हो जाता आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, और वहाँ पे हमको फर्टिलाइज़र भी मिल जाता, डिकम्पोज्ड फर्टिलाइज़र भी हमको वहाँ पे मिल जाता, मतलब बेनिफिट हो जाता हमारा। बट प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिकम्पोज होता ही नहीं है, उसको कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसको डिकम्पोज होने में, और उसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। पोल्यूशन किस तरीके से, इसको जलाया जाता है, तो ये इमेज में अगर आप देख रहे हो तो ये बर्निंग हो रही है, यहाँ पे जलाया जा रहा है। तो ये जलाने की वजह से बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस उससे रिलीज होते हैं, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच विल डिप्लीट द ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर डिप्लीशिएशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचती, और पहुंचने की वजह से क्या होगा, वहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गन्स है, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी लिविंग ऑर्गन्स है उसमें प्लांट्स आ गए, ट्रीज आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, सारी चीज़ें आ गई, सारे लिविंग ऑर्गन्स आ गए, उन सब को जो है हार्म करती या करती है अल्ट्रावायलेट रेज।
और नेचुरली हमारे पास जो है ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड दिया हुआ है नेचर की तरफ से, एज इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर। ये लेयर, ये प्रोटेक्टिव शील्ड क्या करती है, शील्ड है हमारे पास, शील्ड लेयर है इस तरीके से अर्थ के ऊपर है। ये ब्लू कलर वाला नजर आ रहा है ना आपको, इस तरीके से। सो दिस शील्ड फिल्टर्स द अल्ट्रावायलेट रेज, और अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे फिल्टरिंग ना होगी इसकी और डायरेक्टली ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएंगे, तो जितने भी लिविंग ऑर्गन्स है सबको सब जो है वहां पे खत्म हो जाएंगे। अचानक से नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लिविंग ऑर्गन्स उस एरिया से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सन से जो रेज आते हैं, देखो सन से जो रेज आते हैं उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे ओजोन लेयर बताई हुई है। ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर है आपकी। अराउंड 20 किलोमीटर्स जो है अर्थ के सरफेस से लेकर ऊपर होती है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर किया जा सकता है। तो अर्थ से जो है अलग अलग कैटेगरीज के अल्ट्रावायलेट रेज है यहाँ पर, ए, बी और सी। सी वाली सबसे हार्मफुल है, डार्क रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। बी वाली थोड़ी सी कम हार्मफुल है, ऑरेंज कलर से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ए वाली बहुत कम हार्मफुल है, जिसको येलो कलर से या पेल येलो कलर से जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सो ओजोन लेयर का काम ही यही है कि इसको फिल्टर करना है और ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को जो है नीचे नहीं जाने देना है, हार्मफुल रेज को नीचे नहीं जाने देना है। ठीक है, तो प्लेन जहां होता है ना, प्लेन जिस हाइट के ऊपर उड़ता है उसके ऊपर जो है अल्ट्रावायलेट रेज अपना जो है ओजोन लेयर होता है। और ये ओजोन लेयर के अंदर होल्स भी होते हैं, डिप्लीशिएशन भी होता है उसका। तो जिस हिस्से में ओजोन लेयर का होल हो जाता है ना, उस तरीके से यहाँ पे देखो लाल लाल जो नजर आ रहा है ना आपको, रेड कलर वाला, इस तरीके के आपको जो है ये थर्मल इमेजेस है, इस तरीके के इफेक्ट्स वहां पे देखने को मिलते हैं आपको, जहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशिएशन फास्टर रेट से होता है। ओजोन लेयर की थिकनेस जहाँ पे कम हो जाएगी वहां पे आपको रेड कलर के जो है इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे। तो इन शॉर्ट हमारा जो मेन पर्पज है यहाँ पर वो ये है कि वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करना है, उसको बर्न नहीं करना है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। इसीलिए जो है रिसाइकल करके उसको रेलवे स्लीपर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नाउअडेज टेक्नोलॉजी अभी थोड़ा सा वहाँ पे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, बट इन द अर्ली स्टेज thermosetting plastics are considered that it cannot be recycled, उसको ऐसे कंसिडर किया जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम इसको, तो दे कैन नॉट बी रीसॉफ्टन्ड, उसकी जो है हार्डनेस को रिड्यूस नहीं किया जा सकता था, और इसके अंदर स्ट्रेंथ, रिजिडिटी अच्छी खासी होती है, हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर जाता है। If heated to excessive temperature, the polymers decomposition takes place. Example: the bad smell of bakelite during an electrical short circuit is an indication of decomposition. तो बहुत गंदी स्मेल या बैड ऑर्डर जो है जब ये इसको हीट किया जाता है तो आती है वहाँ से, इसमें से जो ऑब्वियसली हैजार्डस गैसेस को रिलीज करती है। Thermosetting resins have three-dimensional molecular structure and have very high molecular weight. Due to the cross-linking, thermosetting resins are hard, tough, non-swelling and brittle. They cannot be remolded, reshaped by subsequent heating. They do not have resale or scrap value. एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो पॉलीथीलीन टेरा एथिलेट या फिर पॉलीयूरेथीन्स मैट्रेसेस बनाने में, कोटिंग्स बनाने में, एडहेसिव्स बनाने में, कार के अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाने में, रोलर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वॉल्कनाइज्ड रबर्स, टायर्स, रेजिन और उसी के साथ साथ रेन कोट्स और गम बोर्ड्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्रेक लाइट्स, हीट रेजिस्टेंट हैंडल्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन रोटर्स बनाने में। तो जो आपको मैं किचन का एग्जांपल दे रहा था वो ब्रेक लाइट के अंदर में आता है। फिर उसके बाद मेलामाइन रेजिन्स यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो वी विल स्टॉप ओवर हियर and we'll continue in the
Next lecture. Thanks for watching the video. That's it for today. I will be back with new and interesting contents in the next video. Till then, take care and goodbye. Do not forget to hit subscribe button for getting notified when I will be back with new videos.